So the next topic is computer representation of sets, means how sets are represented in the computer system, or we can say in the memory of the computer system. So when, and its definition is, when an universal set U is finite, say U is x1, x2, x3, so on xn, then all the subset of U can be represented with string of length n. A bit string is a string over the alphabet 0 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर स्मॉल n एलिमेंट्स हैं, तो इस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी के सभी एक n बिट के स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और n बिट की स्ट्रिंग की बात जो हम कर रहे हैं ओवर अल्फ़ाबेट 0 1, यानी कि एक बाइनरी स्ट्रिंग होगी। तो ये कंप्यूटर में इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो सबसेट का जिक्र किया गया है, बिकॉज ऑल द सेट्स under consideration will be subset of a specific set, that is universal set. Suppose that we have a problem in which there are three sets A, B, C, then A, B, C will be subsets of capital U, that is universal set. So subset means here all the sets which are under consideration for a particular problem, and for those sets there will be a specific set, that is universal set. All the sets will be represented with the help of binary number, that is a bit string, and binary number is well known, that is over alphabet 0 1. एग्जाम्पल इसके लिए आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में हमारे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हैं, और सपोज डैट कि दो सेट हमने लिया, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं ए जिसमें 1 and 2 है, और एक बी लिया जिसमें 3 4 5 6 है। 3 4 2 4 6 एक कॉमन कर दे रहे हैं, 2 4 6 एक कॉमन एलिमेंट ले रहे हैं, जिससे इंटरसेक्शन ऑपरेशन और यूनिवर्सल यूनियन ऑपरेशन समझाया जा सके। तो ए को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ ए विल बी रिप्रेजेंटेड, हाउ A and B will be represented in computer question is that how A and B will be represented in computer. So then A will be represented by 1 1 0 0 0 0, and B will be represented by 0 1 0 1 0 1. कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि बिकॉज 1 2 is in set A and its position is 1 2, so first second, so these two position will be by 1 because these two elements occur in this subset A, and rest 3 4 5 6 is not in A, so that place will be as a 0. तो ये बात ध्यान रखना है, जो भी एलिमेंट सबसेट में है उसके करेस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन पे हमें 1 रखना है, अगर नहीं है तो 0 रखना है। इन सेम वे 2 4 6 यानी कि सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ पोजीशन occupied by 1 and rest will be occupied by 0. 0 means particular element is not in our set, and 1 means particular element is in our set, because it is given in the definition that this, if universal set have 6 numbers, 6 elements, then its all the subsets, means like set A and B, will be represented by a binary number that is of length 6. So it have to care, and
if we are talking about some operation like complement, so A dash will be represented by 0 0 1 1 1 1. So because all the elements which is not in A will be in A complement, means its complement, and those which are in A will be not in A complement. So because 1 2 is in A, so 1 2 is not in A complement. 3 4 5 6 is not in A, so 3 4 5 6 in A complement. So easily you can get this by complementing this binary number. 1 complement 0, 1 का complement 0, 0 का complement 1, 1 1 1, ऐसे भी आप पता कर सकते हो. In same way we have to know about B complement. So 0 complement of 0 is 1, complement of 1 is 0, complement of 0 is 1, again 0, again 1, and finally again 0. So in this way we can calculate A's complement, B complement. If we have to calculate A union B, then just take A union B, means you have to OR operation of every bit. You have to take OR operation of every bit, means 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1. अगर आप इसका और ऑपरेशन करेंगे तो 0 1 और 1 0 1 0 1 1. दिस इज ए यूनियन बी. सिंपली आपको यही काम करना है. और ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आपको ए और बी का जो भी सीक्वेंस दिया गया है, जिस भी स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किए गए हैं, उसका आपको एंड करना है. तो 0 1 एंड करने पे 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 1 1 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा. तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी. और सिंपली भी आप देख सकते हैं कि 1 2 2 4 6 में केवल 2 कॉमन है. इस नाते करस्पॉन्डिंग बिट केवल हाई है, मीन्स 1 से रिप्रेजेंट है, रेस्ट आपके 0 0 हैं. सो बाय दिस वे वी कैन compute intersection and union and other operation you can also calculate. मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. जो कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सेट जिस भी यूनिवर्सल सेट के कंसिडरेशन में है, उस यूनिवर्सल सेट में कितने बिट हैं ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है. तो अगर वो आपको पता चल जाए कि उसमें n बिट हैं, तो आप n एलिमेंट्स हैं, तो आप एक बाइनरी नंबर लेंगे n बिट का, मीन्स जितने भी सबसेट हैं वो सब के सब n बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. और वो भी 0 1 अल्फ़ाबेट तो बाइनरी नंबर कह रहे हैं तो क्लियर ही है. और अगर एग्जांपल ये देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो 6 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा हर एक सेट जो भी यूनिवर्सल सेट के अंडर कंसीडरेशन में है. तो अब अगर 1 2 और 2 4 6 दो सेट लिए गए हैं, तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे आप 1 रखेंगे और रेस्ट के जगह पे 0 रखेंगे. तो इस तरीके से 1 2 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 है, बाकी की जगह पे 0 है. 1 2 का करस्पॉन्डिंग पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, 3 4 5 6 का करस्पॉन्डिंग पोजीशन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. इसी तरीके से इसमें भी देखिए, तो सेकंड फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे आपका 1 है, रेस्ट आपका 0 है. अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे U यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A B C D, then all the subset, means all the sets under consideration U, like A is equal to suppose that B and D, and B is equal to ABC, then A will be represented by 0 1 0 1 and B will be represented by 1 1 1 0. Because
there is B and D, and its corresponding position is second and fourth. So second, fourth position is occupied by 1 and rest position is occupied by 0. In set B, corresponding position A, B, C is first, second, third. So first, second, third position is occupied by 1 and rest position is occupied by 0. So this way we can explain or represent कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर हमारा केवल बाइनरी नंबर को ही समझ सकता है, इस नाते हर एक चीज़ बाइनरी नंबर में ही रिप्रेजेंट करना होता है कंप्यूटर के समझने के लिए, इसी नाते ये चीज़ पढ़ाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक, अब आपको हम न्यूमेरिकल्स कुछ बताएंगे जो अब तक पढ़ाया गया है उस पर बेस्ड ऑन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि आपको अगर सेट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में दिया गया है और उसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कैसा लॉजिक सोच रहे हैं। सो इट विल वेरी person to person how they are giving the answer, but in the roster form or tabular form answer will be unique because there will be elements will be represented explicitly, but in the set builder form elements are represented implicitly. So it's depend upon the person how they are thinking how they are thinking to make logic to represent the elements. So question, हर एक क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म, या इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं टेबुलर फॉर्म से, पहला एग्जांपल जो इसमें लिया गया है उसमें a इक्वल टू गिवन है 3, 6, 9, 12, 15 और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिया गया है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो a इज इक्वल टू, अगर आप लॉजिक देखें तो हर एक नंबर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अब आप इसको लिखना अगर चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखे, मान लीजिए x such that x is representative element of this set, means it have capability to represent all the elements which is given in this roster form or tabular form. So we have to think about logic, how they can translate the elements. तो x इज इक्वल टू, अगर आप लिख देते हैं n i आपने लिख दिया, 3n लिख दिया, 3n, वेयर n आपको देखना है क्योंकि n की लिमिट है, n अब यहाँ 3 लिखे हैं तो 1 अगर इनपुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 9 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 12 एंड 5 पे 15। So n have limitation
from 1 to 5. So by this way we can represent. अभी कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे, x इक्वल टू 3n, n इज बिटवीन 2 and 6, ऐसे भी कर सकता है. बोथ आर सेम थिंग, बोथ विल यील्ड सेम आंसर. बट यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि n को नहीं बताया गया है कि n क्या है. इस वजह से n, चूँकि n अगर 1 to 5 के बीच में है तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगे. कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है. सो वी हैव टू क्लियर दैट n इज इंटीजर. तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा. तो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन रोस्टर फॉर्म इनटू बिल्डर फॉर्म. सेकेंड आंसर देखिए, सेकेंड आंसर में b इज इक्वल टू x सच डैट. अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, इंटीजर है, -4 से 3 तक है, तो आराम से आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू i, या n ही आप लिख दें, और n जो है हमारा फ्रॉम -4 से लेकर 3 तक है. लेकिन अगेन आपको n को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, अदरवाइज इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगे, अननेसेसरी आंसर, अननेसेसरी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमारे सेट में नहीं है. सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है ट्रांसलेट करते वक्त या लॉजिक बनाते वक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म से. तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म, set builder form to tabular form, और we can say roster form. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू x such that x is equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सेकेंड क्वेश्चन है b x such that x is an integer b is equal to x such that x is an integer and x from 1 to 7. तो अभी आप देखिए यहाँ पे भी एक बताया गया है, ऐसे आप यहाँ भी बता सकते हैं, इस जगह पे भी बता सकते हैं, इस जगह पे भी ये स्टेटमेंट लिख के बता सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा आंसर हमारा. तो आंसर इसके देखिए, पहला वाला आंसर a विल बी इक्वल टू, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यूज मिलेंगी वही हमारे एलिमेंट हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 फैक्टराइजेशन इसका होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1 and 2, यही तो वैल्यूज मिल रहे हैं. सो a इज 1, 2. ऐसे दूसरे क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसने कहा है x इंटीजर होना चाहिए और 1 से 7 के बीच में होना चाहिए. तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में.
क्वेश्चन ये है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है phi comma phi within curly braces 0 within curly braces and 0। तो ये आपको डिस्टिंग्विश चारों में करना है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो फाई अगर आप देखें थर्ड न्यूमेरिकल, फाई आपका क्या है, फाई एक सेट है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर वो करली ब्रेसेस में नहीं लिखा गया है तो फाई सिंपल एक सेट होता है जो कि एम्प्टी सेट होता है। तो फाई इट इज एन एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम नल भी होता है। तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। और एम्प्टी नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। और दिस फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, इसमें कुछ नहीं लिखना है। तो फाई आपका ये हो गया। इसी तरीके से ये जो है, अब यहाँ पे फाई सेट नहीं है, यहाँ पे हियर इट इज ए सिंगलटन सेट containing an element phi। तो ये एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है phi। इसी तरीके से 0 विद इन करली ब्रेसेस, इट इज आल्सो सिंगलटन सेट containing an element 0। 0 is simply an element, ये एक केवल एलिमेंट है। ये तीन आपके सेट थे, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेट थे। तो ये तीन आपके सेट हो गए, लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये ध्यान देना है। और सेट हैं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है जिसके अंदर दिया गया है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 1 2। इसके सारे सबसेट बताने हैं आपको। तो सबसेट्स आर, पहला फाई हो गया जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयर इज नो डाउट। बट नेक्स्ट सबसेट विल बी कैलकुलेटेड on the basis of how many elements you are considering from the set A. So suppose that one element, then 0, 1 and 2. These three subsets will be comes, and by taking two elements 0 1 1 2 2 0, कैसे ये कितने होते हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3C 0 इज इक्वल टू 1, कोई एलिमेंट आपने नहीं कंसीडर किया, एक एक एलिमेंट कंसीडर किया, 3C 1 इज इक्वल टू 3, दो दो एलिमेंट कंसीडर किया इज इक्वल टू 3, एंड फाइनली ऑल द एलिमेंट दैट इज 3
is equal to also 1. So last subset will be 0 1 2 means same set, as it is well known that every set is subset of itself. तो इस नाते ये भी आ गया। तो टोटल जो है, टोटल सबसेट आपके 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये आपके आए, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट था, इस वजह से ए आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n ऑफ ए, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। कार्डिनल नंबर ही होता है ये 3, तो उसी के नाते वहाँ पे पावर में 3 आया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें 3 सेट दिए गए हैं और पता करना है कौन से सेट्स इक्वल हैं। Which of the following sets are equal? तो कौन से सेट्स आपके जो नीचे लिखे गए हैं उसमें इक्वल है? तो फर्स्ट सेट है S1 इज इक्वल टू 1 2 3। सेकेंड सेट है S2 इज इक्वल टू x such that x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड सेट है S3 इज इक्वल टू x such that x स्क्वायर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x minus 6 is equal to 0. There are 3 sets given in the form of set builder form, and we have to check out which of the sets are equal. इक्वल सेट उसको कहते हैं जिसमें कोई भी 2 सेट इक्वल तभी होंगे जब वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, मतलब जितने एलिमेंट पहले सेट में उतने एलिमेंट दूसरे सेट में, जो एलिमेंट पहले सेट में वही एलिमेंट दूसरे सेट में, जो एलिमेंट दूसरे सेट में वही एलिमेंट पहले सेट में, जितने एलिमेंट सेकंड सेट में उतने एलिमेंट फर्स्ट सेट में, एकदम आइडेंटिकल हो तभी होता है। अब S1 तो पहले से एक्सप्लिसिटली क्लियर है, 1 2 3 है, लेकिन S2 में क्या है कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी सिर्फ 1, क्योंकि वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है। दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू आपको 1 1 मिलेगा, बट सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें कंसीडर होगा, रिपीट नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर 1 सिर्फ आया, तो ये तो इसके बराबर नहीं है। तो S3 अगर देखें तो S3 में भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर मिलेंगे, 1 2 3। आप चेक करके देख लीजिए, 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कोई डाउट नहीं है, x इक्वल टू 1 आएगा ही आएगा। एट x इक्वल टू 2 अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 2 2 जा 4 6 24 प्लस 22 माइनस 6 22 एंड 2 24 22 एंड 8 30 24 6 आल्सो 30, ये भी 0 हो गया। x इक्वल टू 3 पे अगर आप देखें तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 9 6 जा 54 एंड 11 3 जा 33 माइनस 6, यहाँ पे भी 33 और 27 60 और ये भी 60, ये भी 0। तो देर इज नो डाउट दैट देर विल बी 3 रूट 1 2 3। सो S1 इज इक्वल टू S2, ये दोनों सेट आपके इक्वल सेट हो जाएंगे, सेम सेट हैं, तो S1 S2 आपके इक्वल सेट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से हम लोग, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से सेट इक्वल नहीं हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, खैर इस वीडियो में हम केवल उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, रेस्ट जो होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि अगले वीडियो में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। रिलेशन is a topic which is also corresponding to two sets. Suppose that there is a two set A and B, then we have to find out how set element of set A is belongs to or relate to set elements of set B. और इसमें जो जैसे सपोज कर लीजिए एक सेट में आपके यूपी, एमपी, बिहार है और दूसरे सेट में आपका लखनऊ, पटना, मध्य प्रदेश, भोपाल है। तो सिंपल है कि अगर मान लीजिए रिलेशन की वैल्यू दी गई है इज ए कैपिटल ऑफ, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू दी गई है इज ए कैपिटल ऑफ, तो अगर एक सेट है जिसमें यूपी है, एमपी है और बिहार है, दूसरा सेट है आपका जिसमें आपका लखनऊ है, भोपाल है और पटना है, तो आप ये देखेंगे कि यूपी लखनऊ से रिलेट करेगा। अगर आप यहाँ पे यू लिख दें और यहाँ पे लखनऊ लिख दें और यहाँ पे यूपी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटमेंट में लखनऊ इज ए कैपिटल ऑफ यूपी। इसी तरीके से यहाँ पे भोपाल अगर आप लिख दें तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये भोपाल एमपी का कैपिटल ना हो। इसी तरीके से यहाँ पटना लिख दें और यहाँ पे इज ए कैपिटल ऑफ बिहार, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो दिस एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज बिलोंग्स टू दिस सेट बाय द रिलेशन इज ए कैपिटल ऑफ, ये रिलेशन की वैल्यू है, रिलेशन हमारा कैसा है, इज ए कैपिटल ऑफ। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बदल दिया इज ए ब्रदर ऑफ, तो ब्रदर ऑफ में आपको ऐसा ही वैल्यू इधर और इस साइड में लिखना रहेगा जो एक दूसरे से रिलेट करें। तो इस तरीके से ये रिलेशन है, रिलेशन के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।